Capacity of short-term memory. As we discussed, STM or short-term memory not only has a brief duration of few seconds, but it also has a limited capacity. It is a brief immediate memory for material that you are currently processing. It is our window onto the present moment. Without short-term memory, you cannot make sense of what is happening in the present because it keeps falling off after a few seconds. Like listening to this sentence, you are holding the first part of the sentence in your memory. Now, if you only remembered the last words that I said, which were or in your memory, you will not understand the sentence. So for that brief period of time, you have to hold the first part of the sentence and then make sense of the last part of the sentence, few words, and that brings together the meaning for you. So conversation is one purpose of short-term memory. It organizes our cognitive activities like understanding, responding, speaking, and it holds visual and spatial information and plans strategy if we are going to say something, or we're going to stay silent, or we are going to move. It has a short duration of 15 to 20 seconds. What about its capacity? Not only the information is lost quickly, there is a limit. One measure for capacity of STM is the digit span method. Let's look at this demonstration. 2149396786499784. I can remember till here. 7382016. I made error of 1. So the span up to number of digits that you can hold is actually your digit span. The average capacity of STM is about 5 to 9 items, about the length of a phone number. George Miller published a very famous paper which was called The Magical Number 7 plus or minus 2, which means -7, 5, and +7, 9. So that is the capacity, plus or minus 2. More recent experiments and measures of STM have set the capacity at about 4 items. The reason being that sometimes we make groups of those digits. So actually then we are remembering the groups, and within group there is a reason that we are putting them together, like the code of a phone number. Vogel and Luck did this experiment. इन्होंने कलर्स के जो एरे थे उनको फ्लैश करते थे, और पार्टिसिपेंट्स ने ये बताना होता था कि जो सेकंड है वो पहले से डिफरेंट है कि नहीं. अगर तो 1 से लेके 3 तक ये स्क्वायर होते थे उसके अंदर, तो मेमोरी तकरीबन परफेक्ट होती थी, और फिर नीचे जाने लगती थी जब 4 से ज्यादा स्क्वायर जो है वो बढ़ा देते थे वो. तो इसका मतलब है कि वो 4 आइटम रिटेन कर सकते हैं, और इसमें उन्होंने यही बताना होता है बीच में डिले के बाद कि ये सेम है या डिफरेंट है. तो ये जो कर्व आपको नजर आ रहा है, ये इसका मतलब ये है कि ये डीके कर रहा है जैसे जैसे नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो है वो बढ़ रहे हैं. एक तरीका चीजों को ऑर्गेनाइज करके शॉर्ट टर्म में रखने का जो है वो चंकिंग है. चंकिंग का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट आर स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद वन अनदर बट आर वीकली एसोसिएटेड विद एलिमेंट्स इन अदर चंक्स. स्मॉल यूनिट्स जैसे वर्ड्स हैं, इनको हम बड़े लार्जर मीनिंगफुल यूनिट्स में तब्दील कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, जैसे फ्रेजेस हैं, सेंटेंसेस हैं, पैराग्राफ्स हैं या स्टोरीज हैं. तो ये मैनेजेबल नंबर ऑफ चंक्स हम बना लेते हैं मेंटली एक इंटरनल प्रोसेस करके. ये भी मिलर की सजेशन थी. चंकिंग अगर मीनिंग के हिसाब से की जाए तो उससे हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है शॉर्ट टर्म की, कि हम
ज्यादा इंफॉर्मेशन होल्ड कर सकते हैं। हम अनरिलेटेड वर्ड अगर याद करने की कोशिश करें तो 5 से 8 तक सिर्फ याद रहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी में। लेकिन अगर हम उनको चंक्स में अरेंज कर ले और वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना ले तो फिर वो काफी ज्यादा हो जाते हैं, 20 तक वर्ड्स याद रह जाते हैं अगर वो वर्ड्स आपस में रिलेटेड हो मीनिंगफुली। मसलन फोन नंबर्स है ना, तो हमारे यहाँ कुछ कोड्स हैं, तो आपको पूरे फोन नंबर की बजाय अक्सर लोग आखिर का 7 वाला याद रख लेते हैं और कहते हैं कि हाँ वो तो किसी खास कंपनी का है, सो वो या 0333 होगा या 0300 होगा या 0301 होगा। वो पार्ट फिर उनका जो है वो इजी हो जाता है और 7 सिर्फ याद कर लेते हैं। हम जो पीटीसीएल टाइप नंबर्स हैं लैंडलाइन के, उनमें हम कंट्री कोड, सिटी कोड जो है अगर हमें पता हो तो फिर दूसरा नंबर जो है वो कम रह जाता है। हमने चंक कर लिया कि ये वो है और ये वो है, तो उसको अब आपको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके एसटीएम में इसलिए सेव्ड है कि आपको वो पता है कि कंट्री कोड पाकिस्तान का क्या है या इंग्लैंड का क्या है। अब ये जो सेंटेंस है इसको देखें, चाइल्ड, ये जो बहुत से वर्ड्स हैं, चाइल्ड, टिकट, मंकी, लक, जंप, जू, बनाना, लुक, ये आपस में डिफरेंट वर्ड्स हैं। लेकिन अगर मैं इनको एक सेंटेंस में कर दूं, चाइल्ड बॉट अ टिकट टू गो टू द जू वेयर ही सॉ द मंकी जंपिंग एंड ईटिंग बनाना, तो अब इसमें से अगर वो सारे वर्ड्स कंबाइन हो गए तो वो बाद में मेरे लिए आसान हो जाएंगे याद रखना।